आप में से कितने लोग खुश हैं कि वो आज यहोवा के भवन में है, वो जीवित परमेश्वर की हजूरी में है, और जो कोई इस हजूरी में आता है वो सेम वापस नहीं जाता। हालेलुया। आप हो सकता है बोझ से दबे हुए आए हो, परेशान आए हो, बीमारी से आए हो, लेकिन जब आप उसकी हजूरी में आते हैं, आप उसके मसा से भरे जाते हैं और आप सेम वापस नहीं जाते। हालेलुया। Today is a very special day. Today is Mother's Day, and happy Mother's Day to all the mothers in the house and all those who are watching us online. Hallelujah. God has made mothers very special. And I want to share about God's heart for women, God's heart for mothers and mothers in the Bible. यदि आपके पास आपकी बाइबल है, so मैं वर्स बोलूँगी. And if you can open, if you've got Hindi Bible, Hindi खोल ले, English है, English खोल ले, पंजाबी है तो पंजाबी खोल ले, whatever language Bible you've got, open it. The first mother that I want to share about is Jochebed. कौन बताएगा ये कौन है? I'm sure you've come across her so many times. Is it a new name for you? आपने मूसा का नाम सुना है? मूसा का नाम सुना है? मूसा की माँ का नाम क्या था? जोकेबेद. Okay? And her name can be found in Exodus chapter 6 verse 20. And if you've got your Bibles with you, if you can open Exodus chapter 2 verse 1 to 10. Now I'll just give you a bit of a background, a context. क्या हो रहा था यहाँ पे? The Egyptians were in control. They were a superpower. They were in control over the land where the Hebrews were dwelling. And उन्होंने ये बोला था, there was a law. Pharaoh ने बोला कि when he saw that Israelites were numerous and they were multiplying in numbers, he told the midwives to kill every Hebrew male child. And then there are two midwives here that are mentioned, Shipra and Pua, in Exodus 1, 15 and 16. And they feared God. And they would not kill the male child. Pharaoh ने उनको बोला कि जो भी male child Hebrew का जन्म लेगा उसको मार देना. But they feared God और वो बोले कि we cannot do this. So they would let the boy babies also live. And जब फ़ारो ने उनको पूछा कि ऐसा क्यों है, they just said कि the Hebrew women are very swift in giving birth and they give birth even before we can reach. And in verse 20 it says, so God was kind to the midwives and the people increased and became even more numerous. And then in verse 22, then Pharaoh gave this order to all his people, every Hebrew boy that is born you must throw into Nile, but let every girl live. Okay? Now being pregnant at that time, can you imagine the fear? उस टाइम पे कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं होते थे कि पता चल जाए मेल है कि फीमेल है. But at that time, a man in the tribe of Levi married a Levite woman. These are Moses' parents. And she gave birth to Moses. But when she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. तो 3 महीने तक उसने सारे फ़ारो के सिपाहियों से and even all the Egyptians, she had the courage to hide her child. It was very risky. You could lose your life, but she did not care about her life. She was determined to save her boy, her baby boy. चाहे उसकी जान चली जाती, लेकिन उसने वो करेज दिखाया कि मैं इस बेटे को मारूंगी नहीं, ना ही नाइल में फेंकूंगी. She was a very strategic woman. फिर उसने क्या किया? जब उसने देखा कि अब 3 months का बेबी हो गया है, I cannot hide this baby anymore. She got a papyrus basket, एक बास्केट ली उसने, और उसने tar and pitch के साथ उसको कोट किया, और she placed the baby and put it among the reeds on the bank of Nile. नाइल में छोड़ दिया. Can you imagine the pain of a mother leaving a 3-month-old baby on the banks of Nile River, not knowing that whether she will see this boy or not? But I tell you, she had wisdom from God. She was a very strategic woman, and परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था क्योंकि वो परमेश्वर का भय खाने वाली स्त्री थी.
एंड शी सेंट, उसने क्या किया, अपनी बेटी मिरियम को वहाँ पे साथ साथ में चलने के लिए बोला. एंड मिरियम केप्ट एन आई ऑन द बास्केट. एंड क्या हुआ, देन Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe and the attendants were walking along and she saw the basket. जो फ़ैरो की डॉटर थी वहाँ पे गई और उसने देखा कि ये बच्चा है एंड उसने उसको ले लिया. एंड देन क्योंकि बेबी was crying, she saw and she knew immediately it was a Hebrew baby boy. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse baby for you?" She strategically went there. उस समय पे वो वहाँ पे गई और उससे पूछती है, ये बेबी तो है आपके पास, how are you going to nurse this baby? उस टाइम पे कोई formulas नहीं होते थे. The baby was exclusively breastfed and it was survival Moses का था. And वो मिरियम गई वहाँ पे, उसने पूछा shall I send one of the Hebrew women, और वो किसको लेके आती है, मोसेस की माँ को, जोकेबेद को लेके आती है. And then we see how Jochebed kind of nurses the baby and takes care of the baby. So परमेश्वर ने उसके फेथ को ऑनर किया और Moses became one of the greatest heroes of our faith. परमेश्वर के राज्य के लिए मूसा ने कितने बड़े बड़े काम किए. His mother had a very significant impact on his life. और जोकेबेद ना केवल मूसा की माँ थी बल्कि आरन की भी माता थी. She gave birth to two very significant people that we read in the Bible about, two prophets of God, two great men of faith. But अगर वो बोलती कि oh this is the law and I will just do what Pharaoh is asking me to do, या वो अपने परेशानी में कुछ और कदम उठा लेती, तो शायद हमारे सामने मूसा और आरन नहीं होते. She believed in God. She had foresight. She also had favor of God. परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा मूसा बचाया गया और हारून बचाया गया. Hallelujah. She was a mother who knew how to save a baby, who knew no matter कितना बड़ा threat क्यों ना हो, उसने अपनी जान को दाव पे लगा दिया और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया. Hallelujah. So God has given amazing strength and ability to women. They can not only give birth to children, but they have also got strategic oversight and परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी कर सकती है. It's interesting कि इस पूरे इंसिडेंट में I was reflecting on it. I do not hear about Moses' dad, I don't know if she was alone at that time, but she had so much courage. Women at that time did not have उतना freedom नहीं होता था to take such bold steps. She defied the societal norms. उसने हर एक चीज़ को defy किया and she stood in the gap and interceded for Moses and Moses was saved. And then later on if you read Exodus you will know that मूसा को एक वो heart था, even though he was brought up in a palace, he was brought up as an Egyptian, he always had a heart for Hebrews. और वो अपने लोगों के लिए छुड़ाने वाला बना. खुदा ने जब अपने लोगों को देखा बंधुआई में, तो खुदा ने मूसा को खड़ा किया और उसको छुड़ाया. Hallelujah. So praise God for women, for mothers who take risk, who protect children and who stand in the gap. Another woman of faith. There are so many. I just will choose 3 and talk about 3. If you've got your Bibles with you, आपकी Bibles हैं, so turn your Bibles to Samuel. 1 Samuel. एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का एक निवासी अल्काना नामक एक पुरुष था. वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था. उसके 2 पत्नियां थीं. एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनीना था. पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ. वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था. वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे. जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था,
तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? स्टॉप। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? अल्काना की 2 बीवियां थी, एक पेनिन्ना और दूसरी हन्ना। हन्ना का गर्भ यहाँ पे लिखा है यहोवा की ओर से बंद कर दिया गया था, उसके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसकी जो दूसरी वाइफ थी उसके बच्चे थे, और वो इस परिस्थिति में रहती थी कि उसको वो दिन और रात चिढ़ाती थी और नीचा दिखाती थी। यू नो, इवन नाउ इन मैनी सोसाइटीज़ जब कोई मैरिड वुमन के बच्चा नहीं होता, पीपल यू नो मैनी सोसाइटीज़ में उनको नीचा दिखाते हैं। उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, और वो बिटर हो गई थी, वो रोती थी, खाना छोड़ देती थी। उसका हस्बैंड हालांकि उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जो एक माँ बनने की जो चाह थी उसके अंदर बहुत स्ट्रांग थी, और वो जानती थी कि आंसर उसका कहाँ से आएगा, यहोवा की ओर से आएगा। और यहाँ पे वर्स 9 में लिखा है, Then when they had finished eating and drinking, Hannah stood up. Now Eli the priest was sitting by the chair. ये यहोवा के भवन में ईलाई जो प्रीस्ट था वहाँ बैठा है यहाँ पे, और वहाँ पे लिखा है, In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly, and she made a vow. वो रोते हुए यहोवा के भवन में, उसको पता था कि रोना है तो किसके सामने रोना है। यहोवा के सामने जब आप रोते हैं तो दुनिया से आप जीत जाते हैं। हालेलुया। जो यहोवा के आगे रोता है उसको और कोई नहीं रुला सकता। और वो जानती थी कि मेरा उत्तर, मेरा गर्भ जो कि फलवंत होगा वो यहोवा की ओर से होगा। और वो रोने लगी और बोलती है और वो शपथ लेती है, लॉर्ड ऑलमाइटी, इफ यू विल ओनली लुक ऑन योर servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. वो यहाँ पे एक वाचा बांधती है खुदावन से और बोलती है, यदि तू मुझे एक बेटा दे दे तो वो बेटा मैं तुझको वापस दे दूंगी, और वो तेरे भवन में बड़ा होगा और वो तेरे काम करेगा। It was a vow of faith. वो फेथ के साथ इस वाव को बोलती है, और ऐसे करके वो रोती रहती है। और जब वो ऐसे रो रही थी तो ईलाई को ऐसा लगा एज इफ शी वाज ड्रंक ऑन वाइन, और वो बोलता है कि क्यों तू ऐसे वाइन पी के खुदा के घर में आई है, पुट अवे योर वाइन। और वर्स 15 में वो बोलती है, नो नॉट सो माई लॉर्ड, आई एम अ वुमन हु इज डीपली ट्रबल्ड, आई हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाइन और बियर, आई वाज पोरिंग आउट माई सोल टू द लॉर्ड, do not take your servant for a wicked woman, for I have been praying here out of my great anguish and grief. जब यहोवा के दास ने उसको देखा उसकी ग्रीफ में और एगनी में, वो ऐसे रो रही थी और बात कर रही थी, उसको लगा शायद she is intoxicated, लेकिन वो अपने दिल को यहोवा के आगे खाली कर रही थी, और वो जानती थी कि मेरा जो उत्तर है वो यहीं से आएगा। और फिर यहोवा के दास ने उसको बोला, Go in peace, may the Lord God of Israel grant you what you have asked him. It is very important to understand कि ईलाई के निकले हुए शब्द यहोवा ने सुने, हन्ना की प्रेयर को यहोवा ने सुना, और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। और आगे लिखा है, जब वो उठ के वापस गई, In the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son, and she named him Samuel, saying, Because I asked the Lord for him. उसने उसका नाम भी सैमुएल रखा कि मैंने यहोवा से मांगा और यहोवा ने मेरी सुन ली। यहोवा ने मेरे सारी शेम को,
मेरी सारी ग्रीफ को, मेरे सारे एंग्विश को, मेरे सारे दुखों को, मेरी सारी जो इतनी इंसल्ट हुई मेरी, उसको सुन लिया और मुझे बेटा दिया। और उसका नाम उसने बोला सैमुअल, क्योंकि मैंने यहोवा से मांगा और यहोवा से पाया। हालेलुया। शी इज अ मदर जिसने अपने बेटे को यहोवा से मांगा, यहोवा से पाया और यहोवा को वापस दिया। उसने अपना वायदे को यहोवा के सामने पूरा किया। आगे अगर हम पढ़ेंगे वर्स 21 ऑनवर्ड्स, जब फिर से अल्काना जाता है, वो बोलती है कि इस बार तुम अकेले चले जाओ, आई वॉन्ट टू फिनिश द वीनिंग प्रोसेस, एंड शी कीप्स सैमुअल विद हर। और आगे वो लिखा है, जब उसके वीनिंग के दिन पूरे हुए, वो यहोवा के भवन में गई। और वो कैसे गई? वो खाली हाथ नहीं गई। वर्स 24 में लिखा है, शी टुक द बॉय विद हर। इमेजिन, जिसने रो रो के गिड़गिड़ा के यहोवा से अपने बेटे को मांगा। शी डिड नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट गिविंग सैमुअल, क्योंकि उसने परमेश्वर से वाचा बांधी थी। उसने अपने माँ होने का और उस बच्चे के साथ उस बॉन्ड से ज़्यादा ज़रूरी समझा वो वाचा को जो उसने यहोवा के सामने बांधी थी। और वो जब गई वहाँ पे, उसमें लिखा है, वो 3-year-old bull, an ephah of flour, skin of wine, and everything she took in the house of the Lord at Shiloh. When the bull had been sacrificed, they brought a boy to Eli, and she said to him, "Pardon me, my Lord, as surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life he will be given over to the Lord." And he worshipped the Lord there. Hallelujah. वो परमेश्वर के भवन में गई, हर एक ऑफरिंग के साथ गई, और अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ऑफरिंग, एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। And she took Samuel as an offering and gave it unto the Lord. और बोली, let this child serve in the house of the Lord all his life. And we read about Samuel's life. Samuel, परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना, और उसने डेविड को, सैमुअल डेविड के साथ था, सॉल के साथ था, और उसने ऐसी भविष्यवाणियां की कि उनकी डेस्टिनी भी चेंज हो गई। हालेलुया। सैमुअल was born because of a woman's anguish. एक माँ का दर्द, जब उसने यहोवा के भवन में ला के बोला और यहोवा के दास ने उसको ब्लेस किया, तो सैमुअल का जन्म हुआ। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, वी नो। गॉड, शी वाज अ पर्सिस्टेंट प्रेयर वॉरियर। शी डिड नॉट गिव अप। साल ब साल जब वो जाते थे, शी डिड नॉट गिव अप ऑन जीसस, नॉट जीसस, ऑन यहोवा। उसने अपने फेथ को छोटा नहीं किया। शी डिड नॉट stop giving her sacrifices to the Lord. She did not cease praying. And I want to encourage all the mothers, if you're praying for your children, do not give up. For you never know, your prayers can result in Moses being born, in Samuel being born, in changing the destinies of your children. Stand in the gap and pray for your children. जैसा आप यहोवा को बोलेंगे, जैसा आप जीसस को बोलेंगे, परमेश्वर आपके बच्चे को वैसा बोल कर देगा। And she gave Samuel back in the house of the Lord. When you bring your kids in the house of the Lord, when they serve in the house of the Lord, great blessings come upon them. Hallelujah. So take courage, be encouraged. If there are issues with your children, just submit them to the Lord, and may God protect your children and be with them. A third woman that I want to read about is found in Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Komal, if you can read in Hindi. एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की और उसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पास पीछे से चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया,
लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं और उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है और जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। ये एक ऐसी स्त्री थी जो कि इजराइलियों के बीच में से नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि यीशु मसीह नगर नगर जाके लोगों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्माओं के ग्रसित लोगों को भी ठीक कर रहा है। एंड शी लव्ड हर डॉटर सो मच। यहाँ पे अगेन आई डू नॉट सी फादर इनसाइड और फैमिली इनसाइड। वो अकेले निकल गई जानते हुए कि शी विल नॉट बी वेलकम्ड बाय द इजराइलिट्स। शी टुक हर डॉटर, अपनी बेटी को लिया और यीशु मसीह के पास गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लॉर्ड सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी एंड माय डॉटर इज डीमन पोजेस्ड सफरिंग टेरिबली। वो एक ऐसी माँ थी जिसने अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया, जिसने ये नहीं सोचा कि इजरायली उसका तिरस्कार करेंगे, दे विल ट्रीट हर टेरिबली। ऑल शी वाज कंसर्न्ड अबाउट वाज हर डॉटर गेटिंग हील्ड। उस माँ ने अगेन शी टुक अ स्टेप ऑफ फेथ, अपनी बेटी को अपने साथ ले गई और ये बोलती रही। शी वाज परसिस्टेंट इन रीचिंग आउट टू जीसस। It's very interesting in verse 23. It says Jesus did not answer a word. Jesus शांत थे। वो चिल्ला रही है, एंग्विश में है, लेकिन जीसस शांत थे। So his disciples came to him and urged him, send her away for she keeps crying out after us. क्योंकि वो इतना चिल्ला रही थी कि यीशु मसीह के चेले भी परेशान हो गए थे कि इस स्त्री को हटा दो यहाँ से, क्योंकि वो चिल्ला रही है और वो चाह रही है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। And they did not associate with Canaanites. और फिर यीशु मसीह ने बोला, I was only sent for the lost sheep of Israel. मैं यहाँ पे आया हूँ इजराइलियों के लिए, है ना। और वो woman she came and knelt down before him. उसने ये नहीं बोला कि पर हमारे लिए कुछ कर, वो आई, वो सीधा दंडवत करी यीशु मसीह के सामने। She knelt down, she humbled herself and said, knelt down before Lord help me, मेरी मदद कर, यीशु मसीह मेरी मदद कर। उस माँ को पता था कि उस लड़की को कोई चंगा अगर कर सकता है वो यीशु मसीह है, अगर कोई होप दे सकता है वो यीशु मसीह है। वो जान गई थी कि ये जो दुष्ट आत्माएं मेरी बेटी को सता रहे हैं उसके ऊपर अगर किसी का अधिकार है वो यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह ने बोला कि मैं इजराइलियों के लिए आया हूँ और ये ठीक नहीं है कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को दे दूँ। Just imagine. This is the only time, we read about Jesus talking to someone in this way. Jesus ने बोला कि ये बच्चों की रोटी में कुत्तों को कैसे दे दूं, ये ठीक नहीं है। मतलब मैं इजराइलियों के लिए आया हूँ, मैं इजराइलियों के साथ चल रहा हूँ, उनके लिए चिन्ह और चमत्कार कर रहा हूँ, मैं तेरी बेटी को क्यों ठीक करूँ। और वो उसने ऑफेंस नहीं लिया। लॉट ऑफ पीपल इन आवर कल्चर वी टेक ऑफेंस, हमको किसी ने कुछ बोल दिया, वी रेडी टू टेक ऑफेंस एंड वॉक आउट। बट हियर शी वाज, शी न्यू मिरेकल आएगा तो यहीं से आएगा। एंड शी अगेन हम्बल्ड हरसेल्फ और बोलती है कि इवन द डॉग्स ईट क्रम्स दैट फॉल फ्रॉम देयर मास्टर्स टेबल। शी डिड नॉट टेक ऑफेंस। उसने ये नहीं बोला कि क्यों तूने मुझे कुत्तों से कंपेयर किया या मेरी बेटी को। उसने ये बोला कि चूर चार ही हमें दे दे, वो ही हमारे लिए काफी है। शी जस्ट पुट हर सेल्फ रिस्पेक्ट असाइड, क्योंकि उसके लिए, उस माँ के लिए सबसे बड़ा था उसकी बेटी की चंगाई। She was standing in the gap and waiting for Jesus to have mercy on this child. And then Jesus said to her, woman, you have great faith. उसने बोला, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, your request is granted. And her daughter was healed at that moment. अगर वो ऑफेंस ले लेती, पलट जाती, शर्मा जाती, हेजिटेट कर जाती, तो उसके विश्वास के कारण उसकी बेटी कभी ठीक ना हो पाती। लेकिन वो खड़ी रही, अपने बारे में नहीं सोचा। वो इजराइलियों के बीच जा जाके चिल्ला रही थी। वो इतना चिल्ला रही थी कि चेलों ने बोला कि यीशु मसीह इसको हटा दे, लेकिन वो हटी नहीं। शी वॉज अ परसिस्टेंट वुमन ऑफ प्रेयर, अ परसिस्टेंट मदर, जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी।
शी न्यू कि कोई उसकी बेटी को ठीक कर सकता है तो वो यीशु मसीह है. Mothers' prayers are very very important. They shape the destiny of the children. जब आपकी माँ आपके लिए प्रार्थना करती है या आप जब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों को ट्रबल से निकालते हैं, आप उनके ऊपर लाइफ को बोलते हैं, आप उनके ऊपर एक स्पेशल ग्रेस को बोलते हैं. हालेलुया. एंड परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, if you open and I'm going to read it prophetically. Proverbs chapter 31, a very familiar scripture. Verse 10 onwards. A wife of noble character who can find? She is far worth more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good and not harm all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like a merchant ship that brings food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it, and out of her earnings she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night. In her hand she holds the staff and grasps the spindle in her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household. All of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed and is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity, and can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Hallelujah. परमेश्वर ने एक अपने वचन में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है of this wife of noble character, a wise woman. और यहाँ पे God has given multiple skills that an ideal woman has. She's got administrative skills. She is also a businesswoman. She has foresight. She is strategic. She's kind to the poor. She extends her hand to others in need. और जब calamity का दिन आता है या जब ऐसे seasons आते हैं, she is always prepared. And because of her, her children and her husband are also blessed. वो यहाँ पे लिखा, she does not eat the bread of idleness. She's always working. She's thinking ahead. She's strategic. And I pray that let God make all of us women of such noble character, where we are blessing in our communities, where we are blessing in our houses, in the country. Hallelujah. So may God be with you, may God bless you, and may God give you the virtues of a noble woman.